Welcome back, student. Welcome back for another session on heat and mass transfer. I am Paris Yadav, going to take lecture number 5 on a derivation of heat transfer through plane wave in x direction. So this is the first derivation, which will be a basis for another derivation like composite wall, cylinder, like sphere. So this is the first derivation in HMP, which is very important. So without wasting a time, we will start the derivation. So for that derivation, we have to consider a wall. So consider a wall, homogeneous wall. Consider a homogeneous wall. That means a plane wall, homogeneous plane wall. Through which heat is going to transfer. Heat is transferred in x direction. So diagram भी निकाल लेते हैं. Side by side, you just see that I am going to draw the diagram. You see that this is the plane wall, okay, and we can also give the axis of reference. So from here, that could be your x-axis, and this could be a y-axis. Now, if we see the temperature distribution from through this is the plane wall. So some other parameters also we have to plot. For example, from this point to this point, heat is going to transfer. So here is the temperature T1, here is the temperature T2, here is the thickness 0, here is the thickness L. So हम जो भी प्लेन वॉल कंसिडर कर रहे हैं, उस प्लेन वॉल की जो थिकनेस है वो है 0 to L. L में थिकनेस है, ठीक है, एंड दिस इज अ प्लेन वॉल है. So temperature distribution you see that like that, straight x direction and y direction. K, sometimes K is the thermal conductivity of the plane wall. And if we are going to show the transfer of heat, this is the Q, transfer of heat. Now, since it is plane wall, we can give it color like that. That plane wall. No necessary. Now you just see that if we are going to take a plane wall, there are some conditions. So पहले मान लेते कि consider or let what is Q, what is K. So let मान लेते let Q is the rate of heat transfer. ठीक है. After that मान लेते L is the thickness of the wall. सबसे important. L क्या है? Thickness of the wall. Then we can also consider that T1 and T2. T1 and T2 are interface temperatures, inside and outside temperature, or you can say wall temperatures. Wall temperatures at point 1 and 2 respectively. Now K of the wall is also important, so मान लेते K is the thermal conductivity. Of the wall. So before going to derive the equation, हमें एक general equation पता होना चाहिए, general equation of heat conduction in all the Cartesian coordinate. That means अभी यहाँ पे हम x डायरेक्शन के लिए डिफाइन करने वाले हैं डेरिवेशन को, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक रेफरेंस हमें लेना है, उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो हमें जाना है. रेफरेंस क्या है, देखो कि द जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ये हमें कंसिडर करना होता है. द जनरल heat conduction equation, heat conduction equation in all direction, in all Cartesian direction, or you can say all direction, is given. There is a formula, there is the equation which is standard in terms of partial differentiation है. हम देखेंगे what is that. तो डाबा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हीट कंडक्शन का. डाबा E by
डैबा एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सेकेंड, अगर डायरेक्शन हम देखेंगे y का तो डैबा 2t बाय, बहुत सिंपल भी ध्यान में रख लीजिए, डैबा टी 2t बाय डैबा वाई स्क्वायर प्लस डैबा 2t बाय डैबा जेड स्क्वायर। प्लस यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत इंटरनल हीट जनरेट होती है सपोज, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि क्यू टी द इंटरनल हीट जनरेशन, और जनरेशन है, दैट मींस यू हैव टू राइट दैट जी क्यू जी डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल, क्योंकि इंटरनल हीट जनरेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी का रोल आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, डिफ्यूजिविटी भी होगा, इनटू डैबा टी बाय डैबा टाउ, टाउ फॉर टाइम हियर, द रेट ऑफ चेंज। सो यहाँ पे ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम 1 मिनट में सिंपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रेस्ट्रिक्शन क्या है, हमारे पहला रेस्ट्रिक्शन है कि हीट, हीट जो हो रही ट्रांसफर एक्स डायरेक्शन हो रही, ट्रांसफर इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये दोनों भी पैरामीटर हमारे कोई काम के नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स है। सेकेंड थिंग इज दैट नो हीट जनरेशन, तो एक एक एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो हीट ट्रांसफर इन एक्स डायरेक्शन, सो दैट डैबा 2t बाय डैबा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डैबा 2t बाय डैबा जेड स्क्वायर, दोनों भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन को रेफरेंस ले रहे हैं। रेज योर हैंड, यू अंडरस्टैंड। सो नाउ सेकंड जो हम क्राइटेरिया रख रहे हैं, हीट ट्रांसफर जो हो रही है, ट्रांसफर जो हो रही है वो स्टेडी स्टेट में हो रही है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब डज नॉट चेंज, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो चेंज नहीं हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मान लो कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर के लिए आपका हीट ट्रांसफर जो रेट है वो 30 वैट है, तो ये हमेशा 30 सेंटीमीटर में 1 आवर के लिए भी उतना ही होगा, 2 आवर के लिए भी उतना ही होगा, 3 आवर के लिए भी, दैट मीन्स इट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हीट का ट्रांसफर रेट जो है वो, दैट मीन्स इट इज अ स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर इन स्टेडी स्टेट। सो डैबा टी बाय डैबा टाउ, जो कि हम टाइम के साथ रेफरेंस ले रहे हैं, वो भी जीरो है। और एक सेंटेंस यहाँ पे हम लेने वाले, नो इंटरनल हीट जनरेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो इंटरनल हीट जनरेशन। अगर इंटरनल हीट जनरेशन नहीं है तो फिर एक बार क्यू जी बाई के भी क्या हो गया हमारा, जीरो। तो आप बोलोगे सर सभी क्वांटिटी जीरो, यस सभी क्वांटिटी जीरो होने वाली है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी। So that what is remaining after all putting all these values, we have only come up with daba 2t by daba x square, which is equal to 0, which is again equal to 0 because there is no other quantity available in the RHS set. So now for that we have to reduce into the singular, मतलब ये जो higher order है इसे हम single order करना है। सभी को पता है अगर सपोज x का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dx by dt, फिर लेते हैं तो क्या होगा d2x by dt स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा प्रीवियस टर्म, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा प्रीवियस टर्म, तो हमें वही करते जाना है। just see that integrating you will get partial total में कन्वर्ट हो जाएगा, on integrating, on integrating इसका प्रीवियस स्टेट में चलेगा, जो ये डबल ऑर्डर है ना, अभी ये बन जाएगा सिंगल ऑर्डर, डैबा टी बाय डैबा इज इक्वल टू, अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पे मैं अभी पार्टीशन की जरूरत है बिकॉज डिफिकल्ट टू वॉच दिस पेज एंटायरली, यहाँ से हम पार्टीशन, तो हमने देखा कि फिर से इंटीग्रेशन लेना है तो क्या होगा, वो जो डैबा टी बाय डैबा एक्स, इसका इंटीग्रेशन टी का टी हो जाएगा और डी एक्स, देखो वन मोर टाइम आई विल गोइंग टू सिंप्लीफाई। आपके पास क्या बचा है अभी, आपके पास बचा है सर डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव में, अभी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करना है। इससे पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डी टी
बाय dx इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हमें कांस्टेंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा C1, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। वन मोर, यहाँ पे हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। यही पे हमने इंटीग्रेशन लिया, इसका डबल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, जीरो का इंटीग्रेशन C1, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फिर से एक बार, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो हमने पहला कांस्टेंट इनकॉर्पोरेट कर दिया C1। अभी इस टर्म पे ये C1 पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, यहाँ पे C1 हो जाएगा, C1। Now multiply this term here, dt is equal to C1 multiplied by dx. On again integrating, we are very close to the answer, don't give up. On again integrating, what will we have? We will have integration of 1 dt, C1 तो constant है, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा। जब हम दोनों को इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे तो यहाँ पे जो वेरिएबल t है और फंक्शन 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली आएगा t C1, इसका वेरिएबल x है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है x, और अनदर कांस्टेंट आएगा C2। हम इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ये दोनों का कांस्टेंट मैंने यहाँ लगा दिया C1 C2। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें C1 और C2 निकालना है, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, C1 और C2 निकालना मतलब बाउंड्री कंडीशन को रेफर। सो वी आर रेफरिंग अ बाउंड्री कंडीशन ऑफ दैट डायग्राम। बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, स्टडी करेंगे बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, देखो कि जब डायग्राम के ऊपर जाते हैं, कि जब थिकनेस जीरो था, x जीरो था, x इज द थिकनेस, t इज द टेम्परेचर, ओके। x जब जीरो था तब टेम्परेचर T1 था, ये हुआ पहला बाउंड्री कंडीशन। व्हेन x इज जीरो, t इज अ T1। वन मोर टाइम देखो, आप देख सकते हो मेरा पॉइंटर यहाँ पे, जब यहाँ पे थिकनेस कुछ भी नहीं है, ओरिजिन पे मैं पॉइंटर रख रहा हूँ, ओरिजिन पे थिकनेस क्या होता है जीरो, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था स्टार्टिंग में T1, और जब थिकनेस L था तब टेम्परेचर क्या था T2। ये हमारा सेकेंड कंडीशन है। चलो पहला कंडीशन पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा हम देखते हैं। When we put in equation 1, जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो t इज इक्वल टू T1 को रिप्लेस करेंगे, T1 जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली C2 मिल गया हमें। क्यों जीरो हुआ सर, क्योंकि x की वैल्यू हमें जीरो पुट करना है, तो T1 का सब्स्टिट्यूशन हमें C2 का सब्स्टिट्यूशन हमें मिल गया T1, x की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, t रिप्लेस बाय T1, C2 इक्वल टू T1। पहली बाउंड्री कंडीशन हमने पुट कर दी, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन देखते हैं कि सर आपने अभी बोला कि जब x इक्वल टू लीनियर लेंथ L होगा तब t रिप्लेस हो जाएगा T2 से। डायग्राम पे जाते हैं, डायग्राम में देखो, डायग्राम में हम देखेंगे जब लेंथ L है तो वहां पे बाउंड्री में टेम्परेचर T2 पे अटेंड होगा। तो वही कंडीशन है ना, जब x इज L, t इज T2, पुट कर दो ऊपर, यहाँ पे T2 हो जाएगा इज इक्वल टू C1, x हो जाएगा L, C2 एज इट इज, C2 का वैल्यू हम ऊपर से पुट कर देंगे, क्या वैल्यू C2 का, T1, T1 माइनस T2, यहाँ पे ये T1 इस साइड में हम भेज देंगे तो हमें C1 का वैल्यू मिलेगा। देखो C1 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू, जब ये T1 इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये जो लेंथ मल्टीप्लाई में है C1 के, वो इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सभी को पता है जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस होता है। ये जो प्लस टर्म है ये इक्वल टू में जाएगा तो माइनस होगा, और ये जो मल्टीप्लाई वाला L है इक्वल टू में जाएगा तो डिवाइड। तो इस इन दिस वे वी गॉट बोथ द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। तो ये दोनों भी वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, क्या बोला है यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन। So when we put in equation 1, t हमारा क्या बन जाएगा, देखो t इज इक्वल टू C1 में रिप्लेस कराओ T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स, प्लस C2 में रिप्लेस कर दो T1 से। So this is again equation नंबर सेकेंड। मैंने क्या किया,
C1 और C2 की वैल्यू निकाली और इस इक्वेशन में पुट कर दी। यू कैन सी दैट। अभी फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमें यूज करना होगा, क्योंकि ये प्लेन वॉल है, यहाँ पे हीट कंडक्ट होगी, कंडक्ट नहीं होगी। यहाँ पे एक सेंटेंस ला लेते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, बाय फूरियर्स लॉ। हीट कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्लेन वॉल से हीट कंडक्ट हो रही है, कन्वेक्ट नहीं हो रही, तो हमेशा वॉल का कॉन्सेप्ट फूरियर लॉ ही रिप्रेजेंट करेगा। तो फूरियर लॉ सभी को पता होना चाहिए। व्हाट इज फूरियर लॉ, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। सिंपल है लॉ, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये लॉ है। माइनस वन इंडिकेट दैट टेम्परेचर फ्रॉम T2 टू T1। फाइनल कंक्लूजन हम लिखा, वी आर वेरी क्लोज टू द आंसर। जब इस लॉ में फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये वाला t अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसका मतलब मुझे डेरिवेटिव लेना विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये टर्म का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म नहीं दिखेगी आपको। फिर से एक बार मुझे क्या करना है, इन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव लेना है x के साथ। तो मैं x को ढूंढूंगा, x मिल गया मुझे, x का डेरिवेटिव होता है 1, ये हो गया 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, मतलब वहां पे यही टर्म बचेगी। x का डेरिवेटिव अगर 1 हो गया तो ऑब्वियसली यही टर्म बचेगी ना, तो वही टर्म हमें लेना है। यू अंडरस्टैंड, देखो अभी माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन एन, फाइनली ये माइनस साइन अंदर भेजनी है हमें, ठीक है। तो Q का डिफरेंशिएशन आ रहा है, हीट हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल, हीट ट्रांसफर थ्रू प्लेन वॉल is Q is equal to K A T1 माइनस T2 अपॉन L। Q डिपोज किया मैंने, क्योंकि जब माइनस साइन अंदर जाएगी तो T2 को माइनस बनाएगी और T1 को प्लस बना देगी। This is the final derivation of heat transfer through a plane wall. You have to go 2 or 3 times through this derivation. Each and every concept and likely to be completed, likely to be covered. So this is the heat transfer through plane wall. यही रेफरेंस इक्वेशन है जो कि हम बाद में फिर से एक बार यूज करने वाले कंपोजिट वॉल के लिए। So this is the entire derivation of the derivation through plane heat transfer through plane. So I hope guys you understand this equation of heat transfer. Thank you one and all.